Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about prefixes. Now we are going to study about measuring instruments. Firstly, we need to know that what are measuring instruments. Measuring instruments are basically those instruments which are used to measure physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. Here are different examples of measuring instruments such as meter rule, measuring cylinder, flask and pipette. We will discuss about these measuring instruments one by one. Firstly, we will talk about meter rule. Meter rule is actually 1 meter long graduated stick. The word graduated means it has a sequence of marks at regular intervals. As you can see in this diagram, there is a wooden stick which is 1 meter long and this stick has sequence of marks at regular interval. So this is known as a meter rule. A meter rule is divided into 100 equal parts and each part is equal to 1 centimeter. And in this meter rule, the small line shows a centimeter. So this is 10 centimeter, then 20 centimeter, 30 and so on. So a meter rule consists of 10 equal parts and each part is equal to 1 centimeter. And each centimeter is further divided into 10 millimeters. So a meter rule can measure the length of an object up to 1 millimeter. We use meter rule to measure the length of an object or to measure the distance between 2 points. While measuring the length between 2 points, keep your eye vertically above the reading point as shown in this diagram. If the eye is positioned either left or right side to the measuring point, then the reading will become incorrect. So this is the right way to measure distance between 2 points by using meter rule. If you want to measure the length of a plate, then keep your eye vertically above the reading point. As you can see in this diagram, this is the right position of your eye to measure reading, that is 5 centimeter. If your eye is positioned either left or right side to the measuring point, then there will be chances of error in your reading. So the error due to the wrong position of eye is known as parallax error. तो स्टूडेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या पैमाइशी आलात क्या होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम उन इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मैस, टाइम, वॉल्यूम एट्सेट्रा. तो इन क्वांटिटीज़ को हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं. तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से हम इन क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मीटर रूल, मेजरिंग सिलेंडर, फ्लास्क, पिपेट. इन सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीटर रूल. मीटर रूल दरअसल एक स्केल नुमा शक्ल का होता है. मीटर रूल तकरीबन 1 मीटर लंबा होता है और ये एक ग्रेजुएटेड स्टिक है. ग्रेजुएटेड स्टिक का मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्टिक है जिसके ऊपर एक सीक्वेंस के साथ मार्क्स लगाए होते हैं. जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 10, 20, 30, 40, 50. तो ये जो मार्क्स हैं 10, 20, 30, इन सब में डिफरेंस 10 का आ रहा है और ये 10 के डिफरेंस के साथ एक सीक्वेंस से चलते जा रहे हैं. तो वो स्टिक जो 1 मीटर लंबी हो और जिसके ऊपर एक सीक्वेंस के साथ दर्जे लगे हों यानी मार्क्स लगे हों, तो उस स्टिक को हम कहते हैं मीटर रूल. मीटर रूल दरअसल किसी चीज़ की लंबाई या 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मीटर रूल के बारे में हमने देखा कि ये 1 मीटर लंबा होता है और इसको 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है. इस स्केल के ऊपर आप ये जो एक स्मॉल लाइन देख रहे हैं, ये एक स्मॉल लाइन 1 सेंटीमीटर को शो कर रही है. तो इस तरह से एक मीटर रूल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है. और ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको मज़ीद 10 मिलीमीटर्स में तकसीम किया जाता है. तो इस तरह से एक मीटर रूल जो है वो किसी भी चीज़ को 1 मिलीमीटर तक
मेजर कर सकता है। अगर हम मीटर रूल की मदद से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हमारी आई की पोजीशन है वो मेजरिंग पॉइंट के वर्टिकली हो, क्योंकि अगर आई की पोजीशन मेजरिंग पॉइंट के वर्टिकली होगी तो हमारी जो रीडिंग है, जो हमारी मेजरमेंट है वो ठीक होगी। लेकिन अगर आई की पोजीशन रीडिंग पॉइंट के वर्टिकली ना हो और लेफ़्ट या राइट साइड पे हो तो हमारी जो रीडिंग है उसमें एरर आने के चांसेस हैं, यानी जो हमारी रीडिंग है वो डाउटफुल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मीटर रूल की मदद से एक प्लेट की लेंथ को फाइंड कर रहे हैं तो प्लेट की लेंथ को फाइंड करने के लिए जो हमारी आई की एक्यूरेट पोजीशन है वो रीडिंग पॉइंट के वर्टिकली होगी। तो इस तरह से जो प्लेट की लेंथ है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन अगर हमारी आई की पोजीशन रीडिंग पॉइंट के लेफ़्ट या राइट साइड पे हो तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आई है उसमें डिफरेंस आ गया है। तो इस वजह से जब हम मीटर रूल की मदद से किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड कर रहे हों या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हों तो हमारी जो आई की पोजीशन है वो हमेशा रीडिंग पॉइंट के वर्टिकली होगी। अदरवाइज़ हमारी रीडिंग में फिर एरर आने के चांसेस हैं, और ऐसा एरर जो आंख की गलत पोजीशन की वजह से आए उस एरर को पैरेलैक्स एरर कहते हैं। जैसे हम इन दोनों केसेस में देख सकते हैं कि आई की रॉन्ग पोजीशन की वजह से रीडिंग में चेंज आया है, तो ऐसे एरर को हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। Here our first question is why we use measuring instruments. The answer of this question is measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. The next question is define a meter rule. A meter rule is 1 meter long graduated stick, and a meter rule is divided into 100 equal parts and each part is equal to 1 centimeter. 1 centimeter is further divided into 10 millimeter. So we can measure the length of any object up to 1 millimeter by using meter rule. After that we have learned about a right way to read a particular measurement from a meter rule. After that we have discussed about an activity by which we can easily understand that what will be the position of our eye while we are reading a meter rule. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है पैमाइशी आलात क्या हैं। पैमाइशी आलात मुख्तलिफ फ़िज़िकल मिकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन लंबाई, मैस, वक्त और वॉल्यूम वगैरह। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीटर रूल की तारीफ़ करें। तो मीटर रूल की लंबाई 1 मीटर होती है और इस पर दर्जे लगे होते हैं। मीटर रूल को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर को मज़ीद 10 मिलीमीटर में तकसीम किया जाता है। तो इस तरह से मीटर रूल की मदद से हम किसी भी चीज़ की 1 मिलीमीटर तक पैमाइश मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जब हम मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ की पैमाइश मालूम कर रहे होते हैं या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारी आँख की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारी आँख है वो पैमाइश के मुकाम से अमूदन ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारी आँख दाएं या बाएं तरफ हो तो हमारी जो रीडिंग है उसमें एरर आने के चांसेस है, यानी उसमें गलती आने के चांसेस है। और फिर हमने एक सरगर्मी के ज़रिए भी इसको अंडरस्टैंड किया। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।